So today we will be studying the disorders of the joints. And this is the last portion in locomotion and movement. Now, these disorders of the joints are based upon the reasons for pain and inflammation. So mostly these joint disorders are having pain and inflammation. So it means joint disorders are characterized by the pain and inflammation. Basically there are two types of joint disorders. First one is arthritis and second one is osteoporosis. This arthritis is also called as aching disorder. This aching means pain. So it is a pain disorder. Aching means pain. So it means it is a pain disorder. This is the disorder which is related with the pain. Since earlier we said that these are the disorders which are related with pain and inflammation or characterized with the pain and inflammation. मतलब ये जो जॉइंट के डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर में हमेशा ही पेन और इन्फ्लेमेशन ये होगा. ये पेन और इन्फ्लेमेशन के रीजन के बेसिस पर ये डिसऑर्डर्स को ये दो टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस. एक डिसऑर्डर है आर्थराइटिस एंड सेकंड वन इज ऑस्टियोपोरोसिस. आर्थराइटिस को एकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है क्योंकि इस डिसऑर्डर में पेन होता है हमेशा. इस वजह से ये जो आर्थराइटिस है, ये आर्थराइटिस फिर और आगे अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड किया है. उसमें से सबसे पहला टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. जैसे कि नाम दिया है रूमेटॉइड, इसमें से रियम दिस रियम मीन्स अ वाटरी सिक्रेशन. Watery secretion. In this rheumatoid arthritis, since it is an autoimmune disorder, therefore we must know what the autoimmune word stands for. What is the meaning of autoimmune disorder? In case of autoimmune disorder, our body cells means body's immune cells, they cannot differentiate, so their ability to differentiate between self and non-self cells is lost. क्या होगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब? इसमें जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है या इम्यून सेल्स है, ये अपने बॉडी की खुद की सेल्स और बॉडी के बाहर की सेल्स यानी फॉरेन सेल्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की जो एबिलिटी है वो खो देती है. इसलिए ऐसे डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है. अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है और ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर. जब किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो उसके बॉडी में रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट रहेगा या रूमेटॉइड फैक्टर डेवलप होगा. दिस रूमेटॉइड फैक्टर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. It is a type of immunoglobulin
which is IgM, which is IgM. So this is all about rheumatoid arthritis. Now in case of rheumatoid arthritis, since we said rheum means watery secretion, so this rheum or watery secretion is being secreted by the synovial membrane. This synovial membrane is present in the joints, and this synovial membrane is made up of a special type of epithelial cells. These epithelial cells, which constitute synovial membrane, it functions for nourishment of the structures which are present in the joint. ये synovial membrane क्या करेगा? synovial membrane synovial fluid secrete करेगा, और synovial fluid के जरिए या synovial fluid के through it will nourish the structures which are present in the joint. Now what happens in case of rheumatoid arthritis, since it is associated with pain and inflammation? So herein this synovial membrane will undergo inflammation. synovial membrane का inflammation होगा. synovial membrane को inflammation अगर हुआ तो ये synovial membrane का होगा thickening. मतलब synovial membrane की जो thickness है वो thickness बढ़ जाएगी. इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये synovial membrane की thickness थी पहले, तो इसको inflammation होने के बाद इसकी thickness बढ़ जाएगी, यानी मोटापा बढ़ जाएगा इसका. ठीक है. synovial membrane thickness बढ़ने की वजह से it will lead to increased secretion of synovial fluid. अब क्या होगा? synovial membrane का thickness अगर बढ़ा तो ये synovial membrane synovial fluid ज्यादा अमाउंट में secrete करेगा जॉइंट में. जॉइंट ये एक लिमिटेड स्पेस है, इसकी वजह से क्या होगा? ये जो synovial fluid है, ये synovial fluid ये increased प्रेशर डालेगा जॉइंट्स में जो बोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर. मतलब ये कि अगर these are the two bones which are participating in the formation of the joint, and these two are the articular surfaces or articulating surfaces of the bone. तो यहाँ पर क्या होगा? At this particular point or at this particular location there will be cartilage. यहाँ पर cartilage रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पर इस तरह से synovial membrane रहेगा. अब होगा ये कि यहाँ synovial membrane से जो भी फ्लूइड सीक्रेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. यहाँ पर synovial फ्लूइड ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होने की वजह से ये synovial फ्लूइड ये डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा दोनों बोन्स के ऊपर. यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये बोन्स में यानी एक जॉइंट में पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या डेवलप होगा? पेन. यहाँ पर पेन डेवलप होगा. ये होगा प्राइमरीली synovial membrane की थिकनेस बढ़ने की वजह से. दूसरा और क्या होगा कि this synovial membrane it starts secreting some crystals. It starts secreting some crystals. These crystals are called as pans. These crystals are called as pans. These crystals
get accumulated into this joint. So since this is the synovial membrane, initially this crystal formation will take place here, and then they will get spread into the joint. Now what is happening secondarily? पहले तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ था, जिसके वजह से ये बोन्स पर प्रेशर डेवलप हुआ था। दूसरी बार ये हो रहा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन क्रिस्टल भी सीक्रेट कर रहा है, ये क्रिस्टल भी यहीं एक्यूमुलेट हो गए। मतलब कि यहाँ पर जो अर्लियर स्पेस था, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा बना है, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये बोन्स पर प्रेशर डेवलप होगा, जिसके वजह से भी एडिशनल पेन एक्सपीरियंस करेगा वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब ये जो पैनस है, जिनको हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहा है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ये कार्टिलेज के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या करेंगे, ये कार्टिलेज का इरोजन करेंगे। यानी पैनस व्हाट दे विल डू, दे विल कॉज द इरोजन ऑफ cartilage. Which cartilages? These are the articulating cartilages. Articulating cartilages का मतलब है कि जो cartilage joint formation में participate करते हैं, जहाँ पर जो cartilages है वो, या फिर ये bones के end पर जो cartilages है वो cartilage, जो कि frictionless movement थोड़ी बहुत करने में help करते हैं। इस cartilage का erosion होगा। erosion मतलब वो cartilage वहाँ से निकल जाएंगे। मान के चलते यहाँ से कार्टिलेज अगर निकल गई तो क्या होगा, यहाँ से कार्टिलेज निकलने की वजह से ये बोन्स ओपन हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन, बोन्स विल ओपन, और यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन विल स्टार्ट। नाउ व्हाट दिस फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन इज, वी हैव सीन इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट। The first type of joint or the immovable type of joint is namely called as fibrous joint. It is an immovable type of joint. बराबर है। अब क्या होगा, यहाँ पर fibrous tissue जनरेट हो जाने की वजह से this fibrous tissues will adhere or will get attached to the bones in this proximity or to these bones which are forming the joint. ये fibrous tissues immovable होने की वजह से ये जो joint है, ये joint भी immovable हो जाएगा, और ये joint immovable हो गया तो वो particular person pain महसूस करेगा। तो ये सब चीजें होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने क्या क्या पढ़ा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून टाइप के डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून टाइप के डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि बॉडी की इम्यून सेल्स जो है या फिर बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यून सिस्टम बॉडी की खुद की सेल्स और फॉरेन सेल्स यानी बाहर से आया हुआ मटेरियल, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की जो एबिलिटी है वो खो देता है या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाने की वजह से हमारे बॉडी में रूमेटॉइड फैक्टर जनरेट होता है, या फिर जिनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा उनके बॉडी में रूमेटॉइड फैक्टर जनरेट होगा। दिस रूमेटॉइड फैक्टर कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन M। ठीक है, अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी खो देता है। इसका मेन रीजन या मेन मतलब ये है कि बॉडी में जो कुछ भी WBCs है, ये WBCs क्या करती है, ये WBCs साइनोवाइल मेम्ब्रेन में चली जाती है। क्या होगा, ये WBCs साइनोवाइल मेम्ब्रेन में चली जाएगी। मतलब ये साइनोवाइल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ एक साइड से, मान के चलिए ये साइनोवाइल मेम्ब्रेन की थिकनेस है। यहाँ पर WBCs आने की वजह से WBCs क्या करती है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। अब ये न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्पेस लगेगी, स्पेस तो है नहीं, तो फिर स्पेस बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, और फिर जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में थिकनिंग ऑफ साइनोवाइल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है,
ये सब चीजें होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। उसके बाद ये होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन की थिकनेस जैसे बढ़ेगी उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, थिकनिंग बढ़ने की वजह से यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का ज्यादा सिक्रेशन होगा। साइनोवियल फ्लूइड का ज्यादा सिक्रेशन होने के बाद वो साइनोवियल मतलब वो जॉइंट में एक्युमुलेट होगा और जॉइंट में जो भी बोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बोन्स पर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरा ये सेम साइनोवियल मेम्ब्रेन इट स्टार्ट सीक्रेटिंग सम crystalline substance, and this crystalline substance are called as spanners. These spanners like substances they will accumulate into the joint space, thereby they cause the erosion of the cartilage, और फिर यहाँ पर this space is accumulated by the formation of fibrous tissues. These fibrous tissues they will adhere to the bones and thereby making this joint immovable in nature. इसके बाद क्या होगा? The joint will become immovable. ठीक है, तो ये सब चीजें होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो सबसे पहला डिसऑर्डर